साधन पद का 46वां श्लोक। स्थिर सुखमासनम स्थिर स्टेबल, सुख happiness, आसन posture. Any posture which gives you happiness in stillness is asana. शरीर की स्थिरता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। अगर शरीर स्थिर नहीं है तो वह आसन में नहीं है। स्थिरता कब होती है? जब बैलेंस होता है। स्थिरता में अनुपात सही होना चाहिए। अभी जैसे आप बैठे हैं, आम भाषा में कह सकते हो आसन में बैठे हैं, पर थोड़ा इसको समझिए आप। The point which is stressed is that it should be stable. Stability is not possible in imbalance. Where there is balance, stability will come there. So divide your body into two, left and right. So now you are sitting on your two buttocks, left and right. Are they being pressured equally? Very big challenge, just check. बैठे हो आप, पर क्या बाएं नितंब पे और दाएं नितंब पे, हिप पे, सिटिंग बोन्स जिस पे आप बैठे हैं, क्या एक सा वजन है दोनों पर? Let's go on your feet, left and right. Are they being given equal pressure? अब किसी भी चीज को नापने के लिए कोई एक मापदंड रखना होगा। तो इसमें मापदंड क्या है? आपका मेरुदंड है मापदंड। तो मेरुदंड को अगर हम वर्टिकल सीधी खड़ी डंडी मान लें और पूरा शरीर बाएं और दाएं दो हिस्से में, जैसे तराजू में रहते हैं दो पलड़े, ऐसे समझिए बायां हिस्सा और दायां हिस्सा आपका इस रीढ़ की हड्डी की डंडी के साथ दो लगे हुए। अब जब आप बैठते हैं तो क्या दोनों हिस्सों में बराबर वजन है? वेइंग स्केल देखा है ना? The weighing scale. The weighing scale has the needle which is in the center if the scales are equal. If empty, then equal. And if they have weight, say a 1 kg weight, iron piece in one side, and then you are measuring sugar on one side, and if it is equal, then that needle will come in the center, else it will tilt to heavier side. So your spine is the needle, and the left side and the right side are the two scales. Asana means that your body has been equally treated, and when you sit, the pressure is equal. Hands, are you pressing more on left or more on right?
Is your shoulders more on left or is your right down? It's exact physical science. कभी शीशे में अपने आप को जब आप बैठते हैं तब उस पोस्चर को सामने शीशे रख के अपने आप को देखिएगा. बायां नीचे तो नहीं है, दायां ऊपर तो नहीं, क्या बराबर है? गर्दन बाईं ओर झुकी रहती, दाईं ओर झुकी रहती, सामने रहती कि सीधी रहती? जब आसन में बैठे तो आपका वजन क्या दोनों तरफ एक सा है? We tend to put more pressure on one side because most of the time your one side is weaker than the other. जो बहुत सारे आसनों का अभ्यास किया जाता है, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवे बेंड, स्पाइनल ट्विस्ट, these all movements are actually to bring that stability in your spine and removing any weakness wherever it is, whether in the left side or whether in your right. Have you felt this कि दोनों टांगों में से एक टांग आपकी ज़्यादा मजबूत है, कम? ऐसे हाथ से जोर लगाओ तो एक में कुछ ज़्यादा है, एक में कम. बाईं आंख ठीक देखती, दाईं कम, या दाएं का जो नंबर है वो बाएं से अलग है. This disbalance in your left and right is sign that your body is sick. पुराने समय में वैद्य फ्रॉम द निपल आदमी को लटा दिया धागे से, फ्रॉम द निपल टू द फुट, द बिग टो, अंगूठे तक, नाभि से स्तन तक, फिर स्तन से पैर के अंगूठे तक, ऐसा नापते थे. और कम ज्यादा मिलने का मतलब कुछ तकलीफ है. They didn't needed any expensive or complicated devices. With the mere thread, they will measure from your navel to the big toe of left and right. And if one is shorter and the other is longer, means there is a disbalance in the stomach. Some disease is in the stomach. From navel to nipple, left and right, if distance is odd, there is some disease. बाएं और दाएं दिमाग में दो हिस्से, दिमाग के भी. कुछ लोग लेफ्ट साइडेड होते, कुछ लोग राइट साइडेड होते. माने कुछ लोग ज़्यादा भावनात्मक होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा गणित, हिसाब किताब में ज़्यादा तेज होते. ये भी डिसबैलेंस होता है. अब जो व्यक्ति गलत बैठता है उसके स्केलेटन, उसके हड्डियों के ढांचे में फर्क आ जाता है, जिससे बीमारी आती. Now this is a training which every kid should be given. One, sit with your lumbar tight and erect. Two, when you sit balanced.
बहुत लोगों के ये फर्क चेहरे में इतना स्पष्ट दिख रहा होता है, उनका पूरा लेफ्ट और राइट साइड का फेस का फर्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी के पैरालिसिस हो जाए ब्रेन स्ट्रोक के बाद, किसी की लेफ्ट, किसी की राइट खराब होती। ऐसा क्यों? जो हिस्सा कमजोर होता है वो जल्दी प्रभावित हो जाएगा। मेडिकल साइंस के पास कोई तरीका नहीं है कि ये ब्रेन स्ट्रोक या बीपी हाई शूट अप हो जाना, इसको वो रोक सके होने से पहले। है क्या उनके पास कुछ? जब हो जाएगा तो जाओगे हॉस्पिटल और फिर डॉक्टर कई बार ब्रेन स्ट्रोक में कहते जी आप लेट पहुंचे हो, देर हो गई। कभी कभी वो क्लॉट को रिमूव कर पाते हैं दवाओं से, कई बार नहीं कर पाते, और कई दफ़े क्लॉट आया और कुछ नहीं हुआ, और कई बार क्लॉट आया और बहुत कुछ खराब करके चला गया। लोगों को बड़ा डर लगता है हमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो जाए, बड़ा डर लगता है उन्हें। फिर वो गोलियां खाते हैं, डॉक्टर के सहारे रहते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते हैं डॉक्टर बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए गोली दे रहा है, ठीक, पर क्या वो ये भी बताएगा कि कुछ समय बाद आपकी डोजेज वो बढ़ाने के लिए कहेगा? क्या वो आपको ये बताएगा कि वही गोली आपकी आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन, रोक पैदा कर देगी? वही गोली जो खा रहे हो आप। ऐसा नहीं कहते। शरीर और मन और हमारे दिमाग का जो बड़ा गहरा रिश्ता है, उस रिश्ते को योग का विज्ञान समझता है। इसलिए योग ये कहता है शरीर से प्रारंभ अगर हम होते हैं। देखिए, शरीर की बात बड़ी बाद में आई, पहले यम और नियम की बात आई है। भाई तुम्हारा बीपी हाई होता क्यों है वैसे? किसी चिंता से, गुस्से से, दुख से? So in other words, you are saying that if you're stressed or angry or depressed, then you can have blood pressure. This means if you don't have any spiritual background, you are sure shot going to be diseased one day. Because you will be stressed, you will be depressed, and you are going to be sad. योग क्या कहता है? अपरिग्रह, चीजों की पकड़ छोड़, राग मुक्ति पाओ, द्वेष मुक्ति पाओ। अब कोई धनवान हो जाए हमें क्या, कोई गरीब हो गया हमें क्या, सब प्रारब्ध भोग रहे हैं, हम भी भोग रहे हैं, हमें क्या। आप काम करते हो, मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन चीज़ों के गुलाम नहीं हो, चीज़ों के पीछे भागते नहीं हो, चीज़ों के पीछे मरते नहीं हो, तो आपको गुस्सा क्यों आएगा फिर? अच्छा, मैं अपनी बात किसी से मनवाना चाहूँ तो मुझे गुस्सा आएगा कि मेरी बात मानते नहीं, पर अगर मैं किसी से बात मनवाना ही ना चाहूँ तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मेरी ममता गहरी है ही नहीं। कोई रिश्तेदार कहे हम गुस्से तेरे से, तुम कहोगे अच्छी बात है, रोज आके दिमाग ही खाते थे, चलो छूटे। एक आदमी की पत्नी भाग गई, बड़ा दुखी था वो। दोस्त आए अफसोस करने, क्या हुआ, कुछ मदद, कहाँ ढूंढें, कैसे करें। पर एक दोस्त कहता है मुझे ना तुम्हें थोड़ी अकेले में बात करनी। चलो, क्या बात? कह रहे ये बता दे तूने क्या किया कि वो भाग गई। I just need to know this. What did you do that your wife ran away? Please give me those tips because I'm dying so that my wife also runs away. She isn't going. She'll take my life before she goes. अब सोचिए यहाँ जो
पुरुष बैठे हैं, उनका अपनी पत्नी से आग्रह खत्म हो जाए और आसक्ति थोड़ी ढीली पड़ जाए और पत्नी कहे मैं जा रही, अगर वो समझदार है तो क्या कहेगा? टिकट कटाऊं, प्लेन पे चढ़ाऊं? जिसके राग नहीं, जिसके द्वेष नहीं, जिसमें इच्छाएं नहीं. See, in world there are no guarantees. Anything can go wrong anytime. Then, other than crying, you have no other option left. Or being angry, or being depressed, or getting suicidal. But if you are a spiritual person, you know how to manage your emotions and not to expect anything from anybody. मन की स्थिरता आती है तो शरीर में भी स्थिरता आने लग जाती है, पर इस स्थिरता की प्राप्ति के लिए ही आसन होते हैं. अब हम स्थिरता चाहते क्यों हैं? भाई हिलते जुलते रहो, क्या दिक्कत है उसमें? हम क्यों सीधे, ठीक, बैलेंस्ड क्यों बैठना चाहते हैं? उसका कारण शरीर से स्थिर और शरीर से रोग रहित होंगे तभी तो अंतर साधना कर पाएंगे. अगर शरीर दुखता रहेगा तो ध्यान कहाँ जाएगा? दर्द में. तो आप लाख चाहो मंत्र जप करना, पर ध्यान कहाँ जा रहा है? दर्द में. तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि शरीर में दर्द ना हो और शरीर में कोई कमजोरी न. When people say they can't sit still for long, that is because their lumbar is weak, their muscles are weak, their joints are weak, the blood circulation is not proper. Hence, even after a little while, they have to move because their legs and shins are aching. पैर सो गए. अरे पैर सो सकते हैं क्या? पर लोग बोलते मेरे पैर सो गए हैं. थोड़ी देर ऐसे बैठते, फिर हिलते हैं, फिर एक बार ऐसे ही कर लेते हैं, फिर ऐसे ही कर लेते हैं, फिर कुछ खुजा लेते हैं, बहाने बहाने हिलते रहते.